Hello everyone. Today we will be starting with a short lecture on diseases of bone, which is a part of oral pathology. I will also be uploading other videos related to oral pathology. So I will try to make this presentation very precise and yet very informative so that you can get a insight of the chapter, and also it will help you to solve the other MCQs. So the first disease which we'll be studying is osteopetrosis. Osteopetrosis is also known as marble bone disease or Albert-Sonnenberg disease. These types of things can also be asked in your question. कि what are the other names of osteopetrosis, और in osteopetrosis की जगह मार्बल बोन डिजीज़ और एल्बर्ट सॉनबर्ग डिजीज़ दे के ही वो लोग ऑप्शन में रख सकते हैं. तो इट इज़ utmost important that you should also know the name of other names of osteopetrosis and other diseases also, and it is caused due to defective osteoclast functions. तो इसके associated features क्या रहेंगे? Myelophthic anemia is seen. Myelophthic anemia is a type of anemia in which the bone marrow function is depleted. The bone marrow becomes more fibrous and pancytopenia is seen. So that type of anemia is known as myelophthic anemia, which is associated with osteopetrosis. Other features are sandwich vertebrae. Here you can see an image of sandwich vertebrae. Rugged jersey spine, Erlenmeyer flash deformity. Here is an image for flash deformity. Here it looks like a flash, and this is the normal bone. And endobone, which is bone within a bone, and alternating sclerotic and loosened bands are also seen in radiograph. So as this is a computer based question paper will be asked on computer, so वहाँ पे picture based questions आने के बहुत probability है. So it will be very nice if you keep a tab on these kinds of pictures also, कि अगर यहाँ कुछ पूछते हैं जनरली वो लोग ऐसे पूछेंगे कि कुछ फीचर्स यहाँ पे बता देंगे. अलॉन्ग विद दैट दे विल ऑल्सो गिव यू द पिक्चर लाइक ऑफ एर्लेनमेयर फ्लैश डिफॉर्मिटी या फिर सैंडविच वर्टिब्रे के, और उसमें आपके ऑप्शन में ऑस्टियोपेट्रोसिस मेंशन रहेगा. अगर ऑस्टियोपेट्रोसिस नहीं भी रहेगा, अगर एल्बर्ट सॉनबर्ग डिजीज़ या मार्बल बोन डिजीज़ रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई करके यू विल हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. द अदर टाइप्स आर इन्फेंटाइल, इंटरमीडिएट एंड अडल्ट. The treatment will be HSCT, calcitriol, erythropoietin and corticosteroids. मैं बहुत quickly जा रहा हूँ so that ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो, and you can always pause and go through the features if you want to. The next disease will be osteogenesis imperfecta, which is also known as brittle bone disease and Lobstein disease. Osteopetrosis is marble bone disease and osteogenesis imperfecta is brittle bone disease. The cause is failure of fetal collagen to transform into mature collagen. Classifications are of two types, type 1 and type 2, which is given by Sillens. Type 1 is most common and blue sclera is seen in type 1. Type 2 में blue sclera may or may not be seen. Maxillary hypoplasia is also seen, which is a type of clinical features, but सिर्फ maxillary hypoplasia से we cannot gain the diagnosis of osteogenesis imperfecta. उसके साथ other features भी present होने चाहिए. तो उसके साथ हियरिंग लॉस भी एसोसिएटेड रहता है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स रहता है, अगेन ओपेलेसिड टीथ भी रहता है. यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं. हियर इज़ अ शॉर्ट निमोनिक विच कैन हेल्प यू रिमेंबर द clinical features of osteogenesis imperfecta. It is inherited as autosomal dominant, not autosomal recessive. Few cases में autosomal recessive दिखता है, but that is very less. तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आता है कि osteogenesis imperfecta is autosomal dominant or recessive, तो always go for autosomal dominant. Sorry for the background noise. ठीक है. पेजेस डिजीज, द थर्ड डिजीज विल बी पेजेस डिजीज. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ क्लिनिकल फीचर्स. इसमें कुछ भी उठा के आपसे क्लिनिकल फीचर दे सकता है और साथ में आपको बोल देगा आइडेंटिफाई द डिजीज़. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस. इट इज़ कॉज ड्यू टू एब्नॉर्मल बोन रीमॉडलिंग. रेशियो इज मेल इज टू फीमेल का रेशियो इज सेम 1:1, बट मैक्सिला इज मोर प्री डिस्पोज्ड. मैक्सिला इट इज़ मोर देन 2 times मैक्सिला में ज़्यादा होता है as compared to mandible. The other features is platybasia. Here is an image which can help you differentiate between normal curvature of the skull and platybasia.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्वेचर है अवेलेबल, बट in case of flat skull or platybasia, the base of the skull becomes flat and it becomes almost straight here. The curvature is lost. ठीक है. Other features is cotton wool appearance, osteoporosis circumstricta, and generalized hypercementosis. Generalized hypercementosis is very important because ये और भी फीचर्स में दिखते हैं, इसलिए हम लोग जनरलाइज हाइपरसिमेंटोसिस जनरली भूल जाते हैं, लेकिन पेजेस डिजीज़ में जनरलाइज हाइपरसिमेंटोसिस दिखता है, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखें. हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स इज भी कैन बी मोजाइक बोन और जिक्सॉ बोन पैटर्न. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी डायग्राम में आपका आ सकता है कि एक इस तरह का हिस्टोलॉजिकल फीचर देते. साथ में दे कैन ऑल्सो मेंशन कि जिक्सॉ bone appearance is appreciated in the histological diagram as shown above to identify the disease. So in that case you can go for Paget's disease or ostitis deformans. ठीक है. उसके साथ अदर फीचर्स दिखेगा, लॉस ऑफ लमाइनर ड्यूरा, रिवर्सल लाइंस. The laboratory finding which is very very important here is elevated alkaline phosphatase. अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आपको कोई भी कंडीशन दिया हुआ जहाँ पे नॉर्मल सीरम एंड कैल्शियम फॉस्फेट है और उसके साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, देन डेफिनेटली इट कुड बी पेजेस डिजीज़. इसके साथ अदर थिंग्स दैट कैन बी ऑल्सो एसोसिएटेड आर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. इट कैन लीड टू ऑस्टियोसार्कोमा, बोन जॉइंट में पेन्स रहता है, वैस्कुलरिटी ज़्यादा रहता है, तो ऑन टच पे यू कैन फील द वार्मथ इन द बोन. एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, लाइक अ पेशेंट कम्स टू योर डेंटल क्लिनिक विथ डेंचर्स इन द अपर जॉ, जो उनको पहले ठीक होता था बट सडनली वो टाइटनेस बढ़ गया है अपर डेंचर में. तो एज इट अफेक्ट्स द मैक्सिला मोल, तो आप यू कैन हैव अ मतलब इंसाइट अबाउट इट कि ये इट कुड बी पेजेस डिजीज़. और एक और कंप्लेंट पेशेंट का आता है जो कि जनरली इस साइड तो नहीं दिखता है, जो पेशेंट हैट पहनते हैं वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि हाँ पहले हैट उनको सही होता था बट ये हैट भी धीरे धीरे टाइट हो रहा. सो दीज आर द थिंग्स विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव यू अ नोशन दैट इट कुड बी ए पेजेस डिजीज़. Next is cherubism. Cherubism is also known as familial multinuclear cystic disease or familial fibrous dysplasia of jaws. It is caused due to the defect in gene chromosome 4p16.3 and the gene mapped is SH3BP2. This is a very very important MCQ. इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें. Clinical features is autosomal dominant, bilateral is symmetrical jaw swelling. It is always bilateral, unilateral कभी नहीं दिखता. Eyes towards the heaven दिख रहा है यहाँ पे आपको. फ्लोटिंग टूथ अपीयरेंस होता है अगर आप OPG में देखेंगे. चबी चीक्स रहता है. न्यूली बॉर्न जो मतलब बच्चे रहते हैं तो उनको देख के मदर लोग देखती है कि हाँ बहुत चबी चीक्स है, मतलब दे फेल टू आइडेंटिफाई द थिंग, बट एज द पेशेंट ग्रोस वो ठीक नहीं होता, देन डायग्नोसिस ऑफ चेरोबिज्म कुड बी ड्रॉन. इसमें ट्रीटमेंट तो एज सच वी डोंट डू एनीथिंग, वी कीप द पेशेंट ऑन रिकॉल एंड अनटिल एंड अनलेस किसी तरह का सिम्टम्स वो नहीं दिखता है तो इट यूजली गेट्स करेक्टेड बाय इट्स ओन. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं. एनीवेज हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर में पेरीवैस्कुलर इसोफेनिक कफिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर्नॉट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. इन ग्रेड 1 इट अफेक्ट मैंडिबुलर असेंडिंग रेमाई, ग्रेड 2 में रेमाई विथ maxillary tuberosity, and grade 3 में it is associated with McCune-Albright syndrome. Other disease is cleidocranial dysplasia which is also known as Marie-Santonis disease. ये जनरली बहुत बार पूछते हैं Marie-Santonis disease. इसके क्लिनिकल फीचर्स में वोर्मियन बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्नोल्ड हेल्ट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रैकिसेफेली, डिलेड क्लोजर ऑफ सूचर्स है, मल्टीपल सुपरनर्मी टीथ है, शॉर्ट रूट्स है, एब्सेंस ऑफ सेल्यूलर सीमेंटम है. This point is again becomes very very important. It is caused due to the mutation of CBF1 gene which is on chromosome 6p21. तो ये फीचर्स है, यहाँ पे फीचर्स आप देख सकते हैं. मल्टीपल सुपरन्यूमररी टूथ दिख रहा है यहाँ पे. तो इसमें एक और पॉइंट है आई थिंक मेंशन नहीं किया हुआ, पेशेंट कैन ब्रिंग बोथ देयर क्लैविकल्स टुगेदर. उसका भी इमेज आप देख लीजिएगा. इस वाले
पीए चेस्ट व्यू में आई थिंक ये देख पा रहा, बट इट इज़ हार्ड टू appreciate in this, but the patient suffering from cleidocranial dysplasia can bring both of their clavicles together. Other diseases, Marfan's syndrome, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन पे अफेक्टेड थे वो इन चीज़ों से इनसे। तो इसमें फीचर्स आपको क्या क्या दिखेंगे? फीचर्स विल बी स्पाइडरी फिंगर विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्रानोडैक्टिली, बाइफिड यूविला, हाई एक्ट पैलेट, मल्टीपल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड कीप insight of this point. Cardiovascular complication and the gene mutation is ABE1F1 gene. तो इस वाले इमेज से आप थोड़ा याद रख सकते हैं. This will help you remember. It is a connective tissue disorder. Obviously, bone is a type of connective tissue, so it is a connective tissue disorder. इसमें आप देख रहे हैं लॉन्ग स्पाइडरी फिंगर, हाई एक्ट पैलेट, दिस इज ऑटोजोमल डोमिनेंट. अब्राहम लिंकन का फोटो भी बना हुआ, हाइट पर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स है, CVS माल फंक्शंस है, एंड FB1 जीन भी दिया हुआ है. तो आप दिस कैन हेल्प यू रिमेंबर मार्फन सिंड्रोम. ये इमेज क्या होता है ना, अगर आप एक इमेज देख लेंगे तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, तो इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Other is fibrous dysplasia. Fibrous dysplasia is also known as Leotenaceous ossia, caused due to defective osteoblast maturation and differentiation. It is caused due to the defect in GNAS1 gene. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है. इंक्रीज साइक्लिक AMP दिखने लगता है. टाइप्स ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेशिया इज मोनोस्टॉटिक, पॉलीस्टॉटिक, craniofacial. Cherubism is also type of familial fibrous dysplasia which we have already discussed in the previous slides. Monostotic is most commonly seen in rapes. Polystotic is seen in femur. उसमें आपको शेफर्ड्स हुक डिफॉर्मिटी भी दिखता है which you can appreciate in the radiograph of limbs. थोड़ा सा बोर्ड टाइप का, बो के जैसा वो दिखता है. You can Google it and see the image of शेफर्ड्स हुक. अगर आगे के स्लाइड्स में होगा तो आई ट्राई टू शो यू. रेडियोग्राफिक फीचर्स में वेरी इंपॉर्टेंट ऑरेंज पील अपीयरेंस, चाइनीज पैटर, ग्राउंड ग्लास, रिन साइन, ये सब बहुत बहुत पिक्यूलर फीचर्स हैं फाइब्रस डिस्प्लेशिया का. तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस पॉइंट्स, क्योंकि अगेन ओरल पैथ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड बोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो सी, ये फाइब्रस डिस्प्लेशिया का ही है जो जॉज में बहुत कम दिखते हैं. स्टिल एक पिक्चर मिला था तो मैंने डाला है. ये मैग्जिला में आपको ये दिख रहा है इस टाइप का. अगर आपके पास पेशेंट आता है, आप क्लिनिकली इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ये आपको ऑस्टियोमा के जैसा भी दिखेगा, और आप जब रेडियोग्राफ लिख लेंगे तो यू कैन अप्रिशिएट द ब्लैकनेस हियर. देन यू कैन टेक अ स्पेसिमेन फॉर बायोप्सी ऑफ इट एंड गो फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. वहाँ पे आपको चाइनीज़ पैटर्न इस तरह का दिखता है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट से यू कैन वेरी वेल confirm that this is a fibrous dysplasia of jaws. So these are the few of the diseases which I have discussed here: fibrous dysplasia, Marfan syndrome, cleidocranial dysplasia, cherubism, Paget's disease, osteogenesis imperfecta, osteopetrosis. These are the diseases which we have discussed today. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू इट. और कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए वो भी आप मेंशन कीजिए. वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग अदर लेक्चर्स ऑफ ओरल पैथोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि अभी मैं ओरल पैथोलॉजी को एज सून एज पॉसिबल कवर करना चाह रहा हूँ. तो you can keep your studying going, or side by side you can just go through these slides so that it will help you in studies. ठीक है, please try to subscribe to my channel and stay updated. Thank you so much.